Hello, my dear 10th standard students. Welcome back to my YouTube channel, PhD Digital Maths. So, जो नए आए हैं और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, please subscribe to my channel and press the bell icon for the new updates. So, today we are going to start Introduction to Circles. And already हमने AP lesson के ऊपर पूरा complete कर चुके हैं. Those who missed that videos, you can go and just click the I button. You will get AP videos there. Okay. So अभी हम लोग इस सेशन में क्या सीखने वाले हैं? What is the meaning of the few terms which we used in the circle? उसका meaning क्या है? Theorems क्या है? Few important theorems which already we have learned in the 9th standard. Chalo, let's start. First is circle is a set of points in a plane which are equidistant from a fixed point in the plane. Okay, इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक सर्कल है, right? A circle is a set of points in a plane. बहुत सारे points मिला के circle होता है, which are equidistant from a fixed point in the plane. ये जो fixed point in the plane है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर. इसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल. That fixed point is called the center of the circle. Fine. The line segment joining the center of the circle and a point on a circle is called a radius of the circle. मतलब सेंटर से लेके जो सर्कल तक लाइन ज्वाइन करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? Radius of the circle. Okay. Now, the line segment joining any 2 points of the circle is called a chord of the circle. Okay, यहाँ पे देखो any 2 points बोले हैं. So maybe ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. सर्कल का कहीं पर भी any 2 points अगर join हुआ है, then these line segments are known as chord of the circle. Next, a chord passing through the center of the circle is called a diameter of a circle. Okay, one more circle I am यहाँ पे मैं draw करके आपको दिखा रही हूँ. अभी तो एक था chord हमारा ऐसे. अभी अगर same chord center के through pass करके जाएगा, then that line segment is known as diameter of the circle. And diameter is the longest chord of the circle. All the chords cannot be a diameter, but diameter can be a chord. Remember this. Chord कभी भी diameter नहीं हो सकता है, because chord only 2 points को टच करता है सर्कल के ऊपर, but center के थ्रू जो लाइन सेगमेंट जाता है that is known as diameter. Okay, two more terms are there. क्या है हम देखते हैं. This is circle. If a line intersecting 2 points of a circle, this is center, it is a line intersecting 2 points of a circle. Okay, then it is called secant of the circle. See here, SECANT. इसे क्या बोलते हैं? Secant of the circle. Remember, if a line intersecting in a 2 points of a circle, देखो यहाँ पे एक point है, यहाँ पे एक point है, 2 points पे intersect करते हैं, then this line is called the secant of the circle. Now another one. और एक क्या है? If a line touches the circle at only 1 point. ओके, यहाँ पे देखो सेकंड दिया है, ग्रीन कलर का सेकंड है. ओके, इफ अ लाइन टचेस द सर्कल, इफ अ लाइन टचेस द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, देखो यहाँ पे 1 पॉइंट पे टच हुआ है, इज कॉल्ड tangent of the circle. इसे क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? tangent of the circle. So ये जो दो टर्म्स है, both are completely different. This is secant of the circle and this is tangent of the circle.
सेकेंड ऑफ बाकी टर्म सब आपको 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा. इवन दो इन द टर्म 1 you can go and check the lesson areas related to circle. वहां पे all the terms I had explained. Okay, I had explained about all the terms. So यहाँ पे सिर्फ दो term new क्या है, एक तो second है, when a line intersecting the circle in 2 points. Okay, when a line intersect the circle in 2 points is called secant. When a line touches the circle at only one point, this is called tangent. इसे क्या बोलते हैं? Tangent to the circle. This is secant of the circle. This is tangent to the circle. So these two are new terms for you in the standard 10th. I think tangent भी था 9th में, but secant is completely new. Even though areas related to circle में भी हमारा ये term नहीं था. So just remember secant क्या है, tangent क्या है. Okay. Now circle in a plane. Okay, circle in a plane क्या होता है? Given two circles in a plane, there arise following possibilities. क्या क्या है possibilities? That means what? अगर एक plane में आपको दो दो circles आ जाते हैं, okay? क्या होता है? दो दो circles अगर एक ही plane में आपको आते हैं, then what are the possibilities? First one is concentric circles. अच्छा, concentric circles क्या होता है? Circles having same center but different radii are called concentric circles. सेंटर O है यहाँ पे देखो, that means what? दो सर्कल होते हैं, दोनों का सेंटर सेम है, यहाँ पे O is the center, बट रेडियस क्या है? छोटे सर्कल का OA है, बड़े सर्कल का OB है. So center O is the same, but radii OA and OB are different, and OA is less than OB, right? Definitely छोटे सर्कल का रेडियस तो छोटा ही होगा ना बड़े से. So OA is less than OB. These type of circles are known as concentric circles. मतलब दोनों सर्कल का सेम सेंटर रहता है, then that is known as concentric circle. Next आपको आएगा intersecting circles. अभी intersect यहाँ पे वर्ड पे ही मीनिंग है. इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को टच करते हैं. कोप्लानर सर्कल्स हैविंग 2 पॉइंट्स इन कॉमन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. मतलब दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं 2 पॉइंट्स में, देखो दिस इज A एंड B, 2 पॉइंट्स में ये दोनों टच हो रहे हैं, एंड P Q आर द सेंटर्स ऑफ बोथ सर्कल्स. Circles with center P and Q are intersecting each other in two distinct points, namely A and B. Okay, दो circles हैं, दोनों अलग अलग दो पॉइंट में टच कर रहे हैं, then this type of circles are known as intersecting circles. एक हुआ हमारा concentric circle जो कि दो सर्कल्स एक ही सेंटर, यहाँ पे दो सर्कल अलग अलग रहते हैं बट इंटरसेक्ट होते हैं दो पॉइंट्स में, देन दिस टाइप ऑफ सर्कल्स आर नोन एज इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. नेक्स्ट टचिंग सर्कल्स. अभी टचिंग सर्कल्स क्या होता है? कोप्लानर सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन वन पॉइंट आर कॉल्ड टचिंग सर्कल. अभी देखो डिफरेंस पता चला, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट होते हैं दो सर्कल्स. यहाँ पे टचिंग सर्कल्स में क्या होता है? एक ही पॉइंट में वो दोनों टच करते हैं. कैसे? दो टाइप के आपको यहाँ पे है, देखो दिस इज Q इज द सेंटर ऑफ द स्मॉल सर्कल, P इज द सेंटर ऑफ द लार्जर वन, एंड A इज द टचिंग पॉइंट ऑफ बोथ द सर्कल्स. दोनों का टचिंग पॉइंट क्या है? P. ये एक टाइप का है. दूसरे टाइप का अगेन sorry, this P is the large one center and Q is the small one center. Okay, P किसका है? बड़े सर्कल का है, Q स्मॉल सर्कल का सेंटर है, and here touching point is B. यहाँ पे क्या है? touching point is B. So इसका नाम क्या होता है? ये
externally, this one is externally touching in point A. This is externally touching in point A, and this is internally touching in point B. ओके, एक्सटर्नली दोनों बाहर से टच कर रहे हैं पॉइंट है में। यहाँ पे देखो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, बट कॉन्सेंट्रिक नहीं है। दिस इज नॉट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दे आर टचिंग इन अ सेम पॉइंट, सिंगल पॉइंट। दैट पॉइंट इज द इंटरनली टचिंग पॉइंट, दैट इज बी। ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है, जो कि इंटरनली टच हो रहा है। Now we will go what are the theorems in this lesson. Mainly आपको दो ही theorems है ये chapter में. First theorem, a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. मतलब क्या है? A tangent at any point of circle. See, this is the figure. XY is the tangent to the circle. Tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius. मतलब ये जो radius है, यहाँ पे जो touching point P है, ये OP is perpendicular to XY. According to our theorem, OP is perpendicular to XY. ओके, कैसे हुआ ये देखते हैं, चलो। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, अगर हम लोग एक एक पॉइंट लेते हैं XY के ऊपर, ठीक है, XY के ऊपर Q लेते हैं एंड जॉइन OQ। ओके, इसका जो भी प्रूफ है आपको पूरा बुक में है, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। ओके, सो OQ को ज्वाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे OQ को ज्वाइन करते वक्त जो पॉइंट पे सर्कल के ऊपर टच कर रहा है, टेक दैट पॉइंट एज R, देन देयरफॉर OR is less than OQ, right? OR is less than OQ, क्योंकि OQ के बीच में R है, तो OR OQ से छोटा होगा, right? But OR is equal to OP, but OR is equal to OP. Reason, both are radius. Therefore, we can write OP is less than OQ, right? OP is less than OQ. Hence, OP is the smallest line that connects XY, right? अभी कोई भी पॉइंट आप ले लो, कहीं पर भी टेंजेंट करो, कोई भी पॉइंट ले लो, तो सेम वे में आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है? अगर OP रेडियस है जो कि ये छोटा है OQ से, that means OP is the smallest line that connects XY. OP क्या है? सबसे छोटा लाइन है जो कि XY को कनेक्ट करता है। Therefore, OP is perpendicular to XY, right? OP is the smallest line that connects XY and the smallest line is perpendicular. Okay, सबसे छोटा लाइन जो होता है वही perpendicular होता है। Fine, this is the theorem 1. ये हुआ आपका पहला theorem. वो कोई भी tangent हो, सपोज ये सर्कल है, आपका tangent ऐसे है, रेडियस से जो भी लाइन जाता है वहां पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। सो ये जो थियोरम्स है ये बहुत यूज होने वाले हैं हमारे ये लेसन में, तो प्रॉपरली उसे याद कर लो। कौन सा थियोरम है? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, at the point of contact, then that means OP is perpendicular to XY. Now the second theorem is the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. That means what? What we need to prove here? हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि to prove is equal to PQ is equal to PR करके प्रूफ करना है।
ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, ये जो डॉट लाइन है ये सब कंस्ट्रक्शन है, आपको सिर्फ इतना ही दिया जाएगा. सो OQ ज्वाइन करना है, OR ज्वाइन करना है एंड OP ज्वाइन करना है. नाउ वी नीड टू कंसिडर टू ट्रायंगल्स. कौन से टू ट्रायंगल्स कंसिडर करना है? POQ एंड POR. POQ एंड POR कंसिडर करेंगे हम लोग. ठीक है, ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR. ओके, उसमें क्या है, OQP is equal to ORP. Reason is what? Both are 90 degree according to our first theorem. Okay, first theorem के हिसाब से दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे. Fine. Now OQ is equal to OR. OQ is equal to OR. OQ is equal to OR क्यों? Both are radius. ठीक है, दोनों रेडियस हैं. That means this is equal to this and OP is common. OP कॉमन है. तो अभी ये कौन से क्राइटेरिया से हम दिखा सकते हैं? ASS, राइट? विच क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होने के बाद बाय CPCT we can write PQ is equal to PR. CPCT. This is triangle OQP congruent triangle QR. Sorry, QR नहीं, ORP. ओके, ORP congruent होने के बाद by CPCT से हम लोग PQ is equal to PR प्रूफ कर पाएंगे. हो गया. These two are the main theorems of the lesson circles. अभी जो आगे का है theorems आपको बताऊंगी. These are already we had learned in the standard 9, but a quick revision आपको मतलब याद एक बार रिकॉल कर देती हूँ, तो आपको याद में आ जाएगा. चलिए देखते हैं बाकी के theorems. More important theorems. First one is, this is the first one, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord and vice versa. मतलब AB is a chord. यहाँ पे क्या है? AB is chord. सेंटर क्या है? O सेंटर है, OX रेडियस है. So according to this theorem, OX is perpendicular to AB. यहाँ पे मैं कुछ प्रूफ नहीं कर रही हूँ चिल्ड्रन, जस्ट आपको एक रिकॉल देना है. रिकॉल करने के लिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये ऑलरेडी हमने 9th में पढ़ा था. OX is perpendicular to AB. So according to this theorem, ये जो सर्कल किया है ये प्रूव होता है. अगर AB कॉर्ड है, O सेंटर है और OX अगर हम सेंटर से अगर एक लाइन ज्वाइन हो रहा है कॉर्ड तक, that means that line is perpendicular to the chord and vice versa. Vice versa मतलब अगर, and one thing, ये 90 डिग्री के साथ साथ AX is equal to BX होता है. ओके, यहाँ पे वो भी मैं लिख देती हूँ. That means OX is perpendicular to AB and AX is equal to BX. Okay, दोनों perpendicular from the center of the circle to the chord, then that bisects the chord and it's vice versa. अगर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है देन ये बाइसेक्ट होता है. वाइस वर्सा मतलब अगर बाइसेक्ट हो रहा है देन दैट लाइन इज परपेंडिकुलर. सेंटर से जो आता है कॉर्ड तक लाइन, अगर वो परपेंडिकुलर है देन बाइसेक्ट करता है. अगर बाइसेक्ट कर रहा है दैट मींस दैट परपेंडिकुलर आल्सो. वाइस वर्सा. नेक्स्ट, इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड इट इज वाइस वर्सा. दो कॉर्ड है,
क्या क्या है? ABCD both are chords, right? O is the center. That means according to this theorem, equal chords of a circle are equidistant from a center. That means if AB is equal to CD, therefore OM is equal to ON, equidistant from the center. सेंटर से जो लाइन टच करेगा कॉर्ड तक, इन दोनों का डिस्टेंस और लेंथ सेम होता है अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम. फाइन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम्स. नेक्स्ट, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. सेमी सर्कल में जो भी एंगल क्रिएट होता है वो राइट एंगल क्रिएट होता है. सपोज दिस इज ABCDE. यहाँ पे कितने सर्कल एंगल्स हैं सेमी सर्कल में? देखो ABC, तीनों एंगल्स राइट एंगल होंगे. दैट मीन्स ABC हाउ मच? 90 डिग्री. तीनों कितना होगा? 90 degree. Next, the angle subtended by an arc of the circle to the center twice the angle subtended by the circumference of the circle. Okay, that means what? The angle subtended by an arc of the circle to the center, मतलब ये एक आर्क है. यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है, राइट, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. दैट मीन्स सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है वो ऊपर का सर्कमफरेंस के साथ टच करके जो एंगल फॉर्म होता है उसका डबल होता है. दैट मीन्स इफ D angle is X, angle O is equal to 2x, double of that angle. So इसका जो wordings है उससे properly समझो. The angle subtended by an arc of the circle to the center, that means center के उपास जो angle subtend हुआ है, that is twice the angle subtended by the circumference of the circle. सर्कमफरेंस में जो एंगल होता है उसका डबल है जो सेंटर पे बनता है. ओके, ये दो थ्योरम्स भी याद रखो क्योंकि ये कैलकुलेशन के वक्त कभी कभी आता है. नेक्स्ट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. नाउ सेगमेंट. अभी सेगमेंट क्या है? देखो सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड. हमें पता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमने पढ़ा था. क्या पढ़ा था? ये है कॉर्ड. सो ये जो नीचे का पूरा है, दिस इज सेगमेंट एंड दिस इज ऑल्सो सेगमेंट. दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज माइनर एंड दिस इज मेजर सेगमेंट, राइट? दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट. सो according to the theorem, angles in the same segment of a circle are equal. So यही सेगमेंट में देखो, मेजर सेगमेंट में जो दो एंगल हैं जैसे भी होना क्यों, उनके वैल्यूज सेम होते हैं. क्या होता है? उनका वैल्यू सेम होता है. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. नीचे का माइनर सेगमेंट है हमें पता है, ऊपर का मेजर सेगमेंट है. तो यहाँ पे जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं ये मेजर सेगमेंट में दोनों एंगल्स हैं. दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द थ्योरम बोथ द एंगल्स आर इक्वल. ओके, अभी नेक्स्ट वन पे देखते हैं. द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. ओके, अभी ये क्या है? द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. अच्छा, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन द सर्कल. वहां पे एक्चुअली एक टर्म भूल गई हूं मैं. इन द सर्कल, सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्या है?
सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, देन जब उसके ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री, then that is known as cyclic quadrilateral. ओके एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है, जब चारों वर्टाइसेस ऑफ quadrilateral touches the circumference of a circle, by that means सर्कल को टच करते हैं चारों वर्टाइसेस, देन दैट इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एंड उसका क्या होता है, sum of the opposite angles of the quadrilateral are 180 degree. That means 1 plus 2 plus 7 plus 8 कितना होना चाहिए आपका, 180 degree. Okay, but it should be in the circle, or the vertices of the quadrilateral should touch the circumference of the circle. Okay, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. ये कैसे होता है बेटा, छोटे छोटे प्रूफ्स में आपको आ जाते हैं. सो यू शुड नो ऑल द थियोरम्स, ना कि ओनली 10th के थियोरम्स हम पढ़ के कर लेंगे, दैट इज डिफिकल्ट. यू हैव टू रिमेम्बर 9th थियोरम्स ऑल्सो, उसका उतना ही आपको क्लैरिटी चाहिए. यहाँ पे हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. पता चला जब क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स जो होते हैं वो जब सर्कल को टच करते हैं एंड ऑपोजिट एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होता है, देन दैट इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट वन इज इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. 2 circles intersect 2 points, एक A है और एक B है. The line through the center is perpendicular bisect of the common chord. मतलब दोनों का सेंटर क्या है, O dash, right? O dash दोनों का सेंटर का जॉइनिंग लाइन है एंड AB इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. According to this theorem, the line through the center is perpendicular bisector of the common chord. That means O dash is perpendicular to AB and AM is equal to BM. Perpendicular bisector टर्म देखो यहाँ पे वर्डिंग्स क्या है, perpendicular bisector. जब दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट होते हैं, दोनों सेंटर है, सेंटर हम जब ज्वाइन करते हैं लाइन, तो ये जो लाइन है ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है. दैट मींस 90 डिग्री तो फॉर्म होता है और बाइसेक्ट भी करता है. AM इज इक्वल टू BM. फाइन. नेक्स्ट आपका है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. द ऑपोजिट sides of the quadrilateral circumscribing a circle. Inscribe and circumscribe याद रखो बेटा. Inscribe जब होता है वो अंदर रहता है, circumscribe जब होता है बाहर रहता है. The opposite side of quadrilateral circumscribing a circle मतलब सर्कल के बाहर है. इनस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब सर्कल के अंदर होता. सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल subtend supplementary angles at the center of the circle. Okay, the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. That means DOC angle plus AOB angle is equal to 180 degree and AOD angle plus BOC angle is equal to कितना होता है 180 degree. According to this theorem, the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend
सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. सर्कल में जो एंगल्स होते हैं देन वो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होता है, सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स 180 डिग्री एंड 180 डिग्री. ओके, दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थियोरम्स. सो इसे भी याद रखो चिल्ड्रन, दिस मच. यहाँ पे तो मेन आपका थियोरम 1 एंड 2 है, तो वो तो आपको याद रखना ही है बिकॉज वो आपके ये लेसन में है. अगर सब्जेक्टिव है देन यू हैव टू प्रूव दैट थियोरम्स आल्सो. बट ये जो इंपॉर्टेंट थियोरम है ये हम लोग जब सम्स करेंगे देन यू विल गेट द क्लैरिटी. क्यों मैम ने ये अभी हमें रिकॉल करवाए, देन डेफिनेटली यू विल गेट द क्लैरिटी. ओके, and one more thing, if you have any doubts, any queries, just feel free to mention your doubts in the comment section. I will, as soon as possible, I will reply to your comments. Okay, so thank you. Bye bye. This is our introduction lesson of the circle. In the next video you will get the sums related to the circles. Okay, and those who haven't subscribed yet, please do like, share and subscribe to my YouTube channel PhD Digital Maths. Bye bye. See you in the next session.